Good morning, dear students. I am Sumit. Today we'll be doing the 8th chapter, Human Health and Disease. In today's lecture, we'll read about the introductory part of Human Health and Disease. In the last lecture, we read about the health, and as we know that health is a state of complete physical, mental and social well-being. Some other terminology or terms are also used in the last lecture, like epidemiology, which is the branch of medical science that study about the distribution of disease. Etiology is the study of causes of disease, and disease is considered as any harmful deviation from normal structural or functional state of body. Then we read about the types of disease, and diseases are of two main types. Either they are congenital diseases or genetic disorders, or they are acquired diseases. The acquired diseases is again of either communicable acquired disease or non-communicable acquired diseases. Then we talk about the disease causing agents. Disease causing agents include any factors or substance or forces that is causing a disease due to either of its presence, absence, deficiency or excess. There are so many types of disease causing agents, which include the physical agent, chemical agent, mechanical agent, nutritional agent and biological agents. In the last lecture, we basically talk about the physical agent and the chemical agent. What is a physical agent? The physical agents include radiation, humidity, pressure, etc. Radiation include X-ray or UV rays. Humidity or some type of pressure or temperature, and as hypothermia is a disease caused by very low temperature. Chemical agents include the chemicals like ammonia, urea, uric acid or some environmental pollutants. There are two types of chemicals, such as endogenous chemicals, which are present inside our body, or exogenous pollutants, which are present in the environment or the surrounding atmosphere. Endogenous chemicals include uric acid, urea, hormones and enzymes, जिनकी अमाउंट कम या ज़्यादा होने की वजह से, अगर ये सही अमाउंट में नहीं होते हैं तो हर इंडिविजुअल जो है वो किसी ना किसी डिजीज़ के उसमें सिम्टम्स आ जाएंगे या वो किसी डिजीज़ को कैरी कर लेगा. एक्सोजीनस जो बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है, लाइक द एयर पॉल्यूटेंट्स, लाइक द डस्ट, स्मोक,
ये सब जो है केमिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं. सो लेट वी बिगिन टुगेदर. द नेक्स्ट agent, let we talk about the next agent, which is the mechanical agent. Mechanical agents are usually the forces which result in injury, fractures, sprains, dislocation, etc. कोई भी ऐसा फोर्स जिस फोर्स की वजह से कोई इंजरी हो जाए, जैसे हम देखते हैं कि कई बार ड्यूरिंग प्लेइंग, जब कोई हम पर्टिकुलर गेम खेल रहे होते हैं, लाइक इन फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी, तो कई लोगों को चोट लग जाती है किसी फोर्स, किसी प्रेशर, किसी फोर्स की वजह से. और कई बार आपने देखा होगा कि फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं. तो ये जो चोट लग जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है. या कई बार आपने देखा होगा कि वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलते समय डिसलोकेशन भी एक प्रॉब्लम है, जो शोल्डर की जो बोन है वो हैंड की बोन से बाहर निकल जाती है. हैंड की बोन शोल्डर की बोन से बाहर को निकल जाती है, तो डिसलोकेशन भी हो जाता है. तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब मैकेनिकल एजेंट्स के अंदर आती हैं. ऐसे ही न्यूट्रिशनल एजेंट की बात करूं तो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स और केमिकल्स which are very important constituents of our nutrition, such as the protein, carbohydrate, fat and minerals. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर्स जो हैं वो बॉडी में हो जाते हैं. अगर मैं नेक्स्ट वन की बात करूं तो नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल एजेंट्स. बायोलॉजिकल एजेंट्स इंक्लूड पैथोजेंस. बायोलॉजिकल एजेंट्स वो एजेंट हैं जो किसी लिविंग एजेंट हैं जिनके थ्रू डिजीज फैल रही है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल एजेंट्स. इसमें जनरली हम बात करते हैं पैथोजेंस, क्योंकि पैथोजेंस आप लोग जानते हैं किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और इस वजह से होस्ट में कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं. सो पैथोजेंस इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमिंथ, ईटीसी. हम जानते हैं कि जैसे बैक्टीरिया से टाइफाइड एक बीमारी हो जाती है. टाइफाइड इज अ वेरी कॉमन डिजीज एंड वेरी डेंजरस डिजीज. कौन सा बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? साल्मोनेला टाइफी. ऐसे ही वायरस. वायरस में आजकल आप जानते ही हैं जो सुपर हिट डिजीज चल रही है आजकल, कोविड-19, कोरोना वायरस. प्रोटोजोअन्स में हम अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि कॉज करता है मलेरिया. हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में हम देखते हैं माइक्रोस्पोरम जो है ये रिंगवर्म फैलाता है. हेलमिंथ कीड़ों की अगर हम बात करते हैं, जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं, तो इसमें हमने बात की एस्केरिस की. ये एस्केरियसिस डिजीज फैलाता है. तो कई सारे ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं, जिनकी वजह से ह्यूमंस में बहुत ही एक वैरायटी ऑफ डिजीजेस जो हैं वो उसका ये कारण बन जाते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कंटामिनेशंस. व्हाट इज कंटामिनेशन? Contamination is usually the presence of disease-causing organisms or toxins in non-living organisms like water, milk, etc. Some of the disease-causing organisms आप देखते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिनका जो पैथोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है, इंडिविजुअल्स को, ह्यूमंस को कहाँ से मिलता है? कंटामिनेटेड वाटर से.
या कंटामिनेटेड फूड से, खराब अगर फूड हो गया तो उसमें वो बैक्टीरिया या वो वायरस या वो पैथोजन रहेगा, और उसी के थ्रू वो पैथोजन जो है उस कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से या उस कंटामिनेटेड फूड को खाने से वो हमारी बॉडी में भी आ जाएगा। Now we come to the next topic, and next topic is transmission of disease. डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। डिजीज के ट्रांसमिशन के दो तरीके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, which include direct transmission of disease and indirect transmission of disease. Direct transmission, what is the definition of direct transmission? It is pathogen of certain diseases reach human body directly without intermediate agents. अगर कोई पैथोजन डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है, उसको कैरी करने के लिए कोई इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है, या कोई फ्लाई की या मॉस्किटो की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी डिजीज़ को, ऐसे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ कहते हैं। और अगर अगर pathogen of certain disease reach human body not directly but reaches by some intermediate agents like fly or mosquito, it is called indirect transmission of disease. डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की अगर हम बात करेंगे तो ये किन तरीकों से फैल सकता है? इट अकर्स इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, लाइक इन द केस ऑफ कोविड-19 अगेन, तो इसे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन का पार्ट कहेंगे। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स जो सलाइवा या जो कफ के थ्रू, जो सलाइवा या स्नीजिंग के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी स्नीजिंग से, कफिंग से, उसके कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल आएगा तो इसे हम बोल देंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। कोविड-19 के केस में यही तो हो रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कांटेक्ट विद सॉइल, हम जानते हैं कि भाई बहुत बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल बॉर्न है, सॉइल में पाए जाते हैं। लाइक अगर हम बात कर दें टिटनेस की, तो टिटनेस का बैक्टीरिया जो होता है वो सॉइल में पाया जाता है, और सॉइल के थ्रू जो ये बैक्टीरिया है वो इंडिविजुअल में अटैक करता है। एनिमल बाइट, कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके इंटेस्टाइन में या जिनकी अगर हम देखें जिनके इंटेस्टाइन में या जिनके सलाइवा में कुछ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या पैथोजेंस पाए जाते हैं, जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना है डॉग की बाइट से रेबीज हो जाता है। और एक और इसका ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज में डायरेक्ट ट्रांसमिशन का एक और तरीका है, वो है फ्रॉम प्लेसेंटा। इसमें प्लेसेंटा के थ्रू मदर से डायरेक्ट, जो उसका अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसके प्लेसेंटा के थ्रू, और अगर उसको कोई डिजीज़ है तो वो डायरेक्टली थ्रू प्लेसेंटा अगर उसके बेबी पे पहुंच जाए
तो इसे हम बोल देते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के तरीके। इसी को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन को हमने कहा था इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे है कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद सॉइल, एनिमल बाइट और थ्रू प्लेसेंटा। अब कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन में क्या कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? जब एक इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आ जाएंगे इन्फेक्टेड पर्सन के, तो कौन कौन सी डिजीजेस कॉमन है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सिफिलिस, रिंगवर्म, एथलीट फूट्स। चिकन पॉक्स एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो माना यह जाता है कि हर इंडिविजुअल को ड्यूरिंग देयर टीनेज ये डिजीज होती है। एक बार ये डिजीज जरूर होती है, और जब ये एक बार डिजीज हो जाती है, या तो ये चाइल्डहुड में होती है, टीनेज में भी हो सकती है, जनरली ये चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है। और जब ये एक बार डिजीज हो जाती है तो इसकी एंटीडोट बॉडी में बन जाती है, इसकी एंटीबॉडी बॉडी में बन जाती है, और उसके बाद फिर ये दोबारा नहीं होती है। बहुत से लोगों, आप लोगों को भी शायद ये कभी लाइफ में चिकन पॉक्स हुआ हो। स्मॉल पॉक्स ये भी एक डिजीज़ है। आज की डेट में ये पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है। अब ये डिजीज़ पूरी तरीके से दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स। ऐसी सिफिलिस है, रिंगवर्म, कई सारे रिंगवर्म्स, ये जो है एक फंगल डिजीज है। रिंग्स बन जाते हैं बॉडी में, कई तरीके के दाद बन जाते हैं जो बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं ठीक होने में, या एथलीट्स फूट है। तो हम देखते हैं एलिफेंटिएसिस है। तो ये और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने या उसके कंटामिनेटेड कपड़े या बाकी सारी उसकी चीज़ें यूज़ करने से भी फैल जाती हैं। जैसे माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन से रिंगवर्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये डिजीज़ हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की, तो ये ड्रॉपलेट्स कौन से ड्रॉपलेट्स हैं? जो ड्रॉपलेट्स आती हैं थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, स्पिटिंग, थूकने से या खांसने से या छींकने से। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुछ बहुत ही कॉमन डिजीजेज हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करते हैं, या हम निमोनिया की अगर बात कर लेते हैं, तो एक जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी जो है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है, ये निमोनिया फैला देते हैं। ये बैक्टीरिया हैं। और कोल्ड जो है, जैसे कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, ये रीनो वायरस जो है कॉमन कोल्ड डिजीज फैलाता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया बैक्टीरियल है। कोल्ड जो है ये वायरल है, या इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरल है। ऐसे ही मेजल्स हैं, वुपिंग कफ जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, ये सब जो हैं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू होते हैं। स्नीजिंग से जो ड्रॉप्स निकलेंगी, या कफिंग से या स्पिटिंग से, उसके थ्रू ये फैल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कांटेक्ट विद सॉइल में, हम देखें तो सॉइल के कांटेक्ट में आने में हमने एक बहुत ही कॉमन है टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटनेस फैलाता है, बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं ये बहुत लंबे टाइम तक सॉइल में सरवाइव कर जाते हैं। और जब इस सॉइल के कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आ जाता है या कोई कट, ये हमेशा ये कोशिश करता है कि ह्यूमन में कैसे ह्यूमन की बॉडी में एंटर किया जाए। अगर बॉडी में कोई पर्टिकुलर कट्स होंगे तो उन कट्स के थ्रू ये टिटनेस के स्पोर जो है बॉडी में आ जाते हैं, और उसके बाद आगे फर्दर इन्फेक्शन फैलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई चोट लगती है तो टिटनेस का इंजेक्शन लग जाता है। और टिटनेस जो है ये कोई वायर से या कोई आयरन की कोई चीज़ अगर उसमें जंग लगा हो तो आयरन के थ्रू कट लगेगा, या कुछ ऐसा चोट लग जाए तो टिटनेस के इंजेक्शन भी लग जाते हैं जो टिटनेस को रोकने का काम करते हैं। इवन इन द ऑपरेशन थिएटर में भी अगर किसी पेशेंट को ले जाते हैं तो उससे पहले उसे टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेते हैं।
तो ये जो टिटेनस है, इसकी कहानी क्या थी कि पहले जब राजा महाराजा होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। आजकल महाभारत रामायण देख रहे होंगे आप लोग, उसमें भी ये सब चीज़ें ही दिख रही हैं। तो बहुत सारे वॉर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। उनकी जो तलवारें होती थी वो टूट जाती थी। और वहीं पे ये जो टिटनेस का जो वायरस था उन तलवारों में आ जाता था। किस तरीके से आता था? क्योंकि ये टिटनेस बैक्टीरिया जो है, इसका जो टिटनेस बैक्टीरिया जो है, ये पाया जाता है बहुत सारे एनिमल्स के इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे हम बात करें अगर हॉर्स की, तो ये हॉर्स की भी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और उस हॉर्स डंग में या हॉर्स जो एक्सक्रीटा है उसके थ्रू ये सॉइल में आ जाता है। अब क्योंकि लड़ाइयाँ होती थी तो हॉर्स घोड़ों के ऊपर ही बैठ के राजा महाराजा और सैनिक आते थे, और वहीं बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। और वहीं जो हॉर्स के डंग या एक्सक्रीटा के थ्रू ये स्पोर जो है सॉइल में आ जाते थे, और सॉइल से ये स्पोर फैलते हुए जो भी आयरन की चीज़ें होती हैं या ये होती हैं इसमें फैल जाते थे। और इसके थ्रू अगर ये जब जो जो सोल्जर्स होते थे उन तक पहुंचते थे तो वहाँ उनको टिटनेस फैलाते थे, और टिटनेस में जबड़ा जो है, जॉ है, ये पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। ऐसे ही अगर हम एनिमल बाइट की बात करें तो एनिमल बाइट्स के थ्रू डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम बोल देते हैं रेबीज़। बहुत ही कॉमन डिजीज़ है रेबीज़। हम लोगों ने सुना है कि डॉग बाइट से हो जाती है, लेकिन केवल डॉग बाइट से रेबीज़ नहीं होती। ये रेबीज़ जो है ये बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाएगा। जैसे ये गिलहरी में भी पाया जा सकता है, कैट्स में भी होता है, मंकीज़ में भी होता है, डॉग में भी होता है। तो कई चीज़ों के काटने से रेबीज़ हो सकता है। थ्रू प्लेसेंटा, हमने कहा था कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन से प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चों पे ये फैल सकता है। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो HIV फैल सकता है, सिफिलिस फैल सकता है, या जर्मन मीजल्स जो है वो फैल सकता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।